So next is Natalia. No, it isn't at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to Burnt Marsh, which means that Oxen Meadows were ours. So now when Lomo says that he can show the documents to Natalia, Natalia is not agree with this. वो कहती है no, it can't be possible. Why it can't be possible? It isn't at all like that. It is not like that, just as you are saying, because my grandfather and great grandfather, दादा और परदादा, great grandfather, reckoned that. reckoned का मतलब है कि give guess और estimate, उन्होंने एक अनुमान लगाया था, एक बताया था, एक अंदाजा क्या लगाया था उन्होंने कि जो ये जो लैंड है, हमारी जो लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड है, इसका ये मतलब है कि ऑक्सन मिडोज हैं वो हमारे हैं. I don't see what there is to argue about, and there is no question of argument in it. It's simply silly. So doing argument on this topic is only a thing of silly. कि एक बेवकूफी वाली बात है, तो उन्होंने मुझे बता रखा है, डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है. But Lomo says, I will show you the documents, Natalia Stepnovena. Natalia, no, you are simply joking or making fun of him. If you are saying again and again that you can show the documents, it means you are joking and you are making fun of me, because I know very well that these Oxen Meadows are ours. What a surprise! We have had the land for nearly 300 years, and then we are suddenly told that it isn't ours. और वो कहती है कि देखो कितनी हैरानी की बात है, 300 ईयर्स से जमीन हमारे पास है और एक दिन कोई अचानक आके हमें क्या कह देता है कि ये जो लैंड है वो उनकी है. Ivan Vasilevich, I can hardly believe my own ears. I am not able to believe my ears, just as you are saying. These meadows aren't worth much to him. The cost is not valuable for me. कि इनकी जो कीमत है ना वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती. हम इतने रिच हैं तो कीमत का तो कोई मतलब ही नहीं है. They only come to 5 descentients and are worth perhaps 300 rubles. 5 descentients का मतलब होता है कि जो एक कॉइन है, सिक्के हैं, descentients, और 300 रूबल्स होगी. ये कोई ज्यादा रकम थोड़ी है मेरे लिए. बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. अनफेयरनेस मतलब जो गलत बात है, जो एक रूल रेगुलेशन है, जो एक हिसाब की बात है, आई कांट bear that unfairness. Money is not useful for me, and it's not worth for me, but I can't stand, means I can't bear unfairness. जो बात गलत है वो गलत है. Say, but you will, I can't stand unfairness, and you should know that I can't bear unfairness. मैं गलत बात है वो सहन नहीं करती, पैसे की तो कोई बात है ही नहीं. Lomov, hear me out. I implore you. Implore का मतलब होता है here, request you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks to my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant. Again Lomov is trying to explain Natalia that, as you know, I request you, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि the peasant of your father's grandfather, जो उनके जो वर्कर्स थे, peasant का मतलब तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के, जैसे कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, वो क्या थे कि वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ईंटें, ब्रिक्स बेक करते थे. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, अब मेरी आंट की ग्रैंड मदर उनसे खुश हुई और उनको एक प्लीजेंट सरप्राइज दिया और ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो. तो सिर्फ इतनी सी बात थी, अदरवाइज उन्होंने उनको दिए नहीं थे. Natalia, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. I can't head or tail. वो कह रही है मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, आंट से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से. I have nothing to do with the meadows are ours, that's all. In short, I want to say that I have nothing to do with your aunts or grandfathers or grandmothers. Only thing I know is that these meadows are ours, that's all. Lomov, mine. No, these are mine. Natalia, ours. अब देखो बच्चों की तरह उन्होंने लड़ना शुरू कर रहा है. वो कह रही है मेरे, वो कह रहा है मेरे. So you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours and ours. कि तुम इसमें प्रूव करने में 2 दिन लगाओ, तुम कहीं आओ, तुम कहीं जाओ, 15 ड्रेस जैकेट, मतलब जो मर्जी करो तुम. What I tell you, they are ours. मतलब तुम जो भी प्रूफ दे लो, they are ours, ours. I don't want anything of yours.
and I don't want to give anything of mine, so there. I don't want anything of yours. मेरे को ना तो तुम्हारी कोई चीज चाहिए और ना मैं कोई अपनी चीज तुम्हें देना चाहती हूँ. And I don't want to give anything of mine. So there it is the thing. Lomov, Natalia Stepnovna. I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. I don't want. I am also very wealthy. I am also very rich. I don't want meadows, but I am acting on principle. Principle यहाँ पे सिद्धांतों की बात है. जैसे वो कहती है ना नतालिया कि I can't bear unfairness, कि मैं गलत बात सहन नहीं करती. वही बात जो है वो लोमोव कह रहा है कि मैं भी प्रिंसिपल्स पे अपने सिद्धांतों पे रहने वाला बंदा हूँ, तो मुझे मिडोस का क्या करना है. इफ यू लाइक, मैं तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट दे दूंगा, एक प्रेजेंट में दे दूंगा, पर ये मत कहो कि ये तुम्हारे हैं. अब नतालिया इस बात को कैसे सहन करेगी कि कोई ऐसे ही फ्री में प्रेजेंट दे दे. नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. मैं देती हूँ तुम्हें प्रेजेंट क्योंकि वो मेरे हैं. बिकॉज दे आर माइन. योर बिहेवियर, इवान वेसेलविच, इज स्ट्रेंज टू से द लिस्ट. आई हैव टू से दैट यू आर एक्टिंग, यू आर बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Till the time we were thinking that you are a very good neighbor and you are a good friend. Last year we lent you our threshing machine. और अब देखो इस तरह की बात होती है तो लोग गिनवाना शुरू कर देते हैं कि हमने तुम्हारी ऐसे हेल्प की, ये चीजें दी, वो चीजें दी. तो लास्ट ईयर वी लेंट, लेंट की सेकंड फॉर्म लेंट है, उधार देना. हमारी जो थ्रेशिंग मशीन है, जो अनाज निकालने की मशीन है, वो भी उधार में दे दी थी. तो हम तो तुम्हें सोच रहे थे तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो. ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर. और इस वजह से हमारी जो थ्रेशिंग का काम था वो नवंबर तक रुक गया तुम्हें देने की वजह से. लेकिन तुम देखो कितना गलत बिहेव कर रहे हो. बट यू बिहेव टू अस एज इफ यू वर जिप्सिस. जिप्सिस क्या होते हैं? जो खाना बदोश होते हैं, जो अपने कभी यहीं पे टेंट लगा के रुके, कभी कहीं चले गए. तो तुम तो ये जिप्सिस की तरह, तुम्हारे अंदर तो कोई वो बात ही नहीं है कि तुम एक अच्छी फैमिली से रिलेटेड हो. तुम इस तरह की बात कर रहे हो. गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे मेरी ही लैंड दे रहे हो. मुझे ही कह रहे हो कि मेरी ही लैंड है और मुझे ही कह रहे हो कि आई विल प्रेजेंट यू और गिफ्ट यू. Indeed, no, really, that's not at all good neighborly. So this is not the thing of a good neighborhood. तो ये तो एक अच्छे पड़ोसी की बात थोड़ी ना होती है जो तुम इस तरह से कह रहे हो. In my opinion, it is even impudent if you want to know. Impudent का मतलब होता है बेशर्मी की बात है. ये तो मतलब तुम इसको ये मान लो कि ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है कि तुम हमारे पड़ोस में रहते हो और इतना हमने तुम्हारी हेल्प की है और तुम यू आर बिहेविंग लाइक दिस. तो इट इज इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो. अब देखो जी, लोमोव है वो भी इतनी बात कहाँ सुनने वाला है. हालांकि मोटिव क्या था लोमोव का? वो एक प्रपोजल के लिए, मैरिज, एक रिलेशनशिप नया कंटिन्यू होने वाला था. लेकिन यहाँ पे जो बात है वो बढ़ती ही जा रही है. लोमोव, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर. तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं भूमि जमीन हड़पने वाला हूँ, जमीन को धोखे से लेने वाला हूँ? मैडम, never in my life have I grabbed anybody else's land and I shan't allow anybody to excuse me of having done so. वो कहता है एक बात सुन लो, ना तो मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी दूसरे की जमीन को हड़पा है, ग्रैब किया है, और ना ही मैं किसी को अलाउ करूंगा कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे. Quickly step to the carafe and drinks more water. पानी रखा हुआ है, एक जग रखा हुआ है, उसमें वो पीता है. फिर क्या कहता है? ऑक्सन मिडोज आर माइन. यानी कि अभी भी वो रट जो है वो दोनों की खत्म नहीं हुई है ऑक्सन मिडोज की. वो कहता है वो तो हमारे ही हैं. नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स. लोमो, माइन. सो हाउ कैन बी दिस डिस्प्यूट सोल्ड? Natalia, it's not true. I will prove it. I will send my mowers out to the meadows this very day. It's not true. ये तो सच नहीं है. मैं प्रूव क्या करती हूँ? मोवर्स कौन होते हैं? जो घास वगैरह खोदने वाले होते हैं, वो मोवर्स होते हैं. कि आज मैं अपने बंदे में भेज देती हूँ, वो हमारे हैं और इससे प्रूव हो जाएगा कि मैंने अपने बंदे भेजे हैं. लोमो, व्हाट? नतालिया, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. वो कहता है नहीं, मेरे जो मोवर्स हैं, जो ग्रास को काटने वाले हैं, जो काटने वाले होते हैं फसल, मैं भेजूंगा वो, क्योंकि मेरी जमीन है. लोमोव, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक. अब वो क्या कहता है कि ठीक है, फिर मैं उनकी गर्दन ही उनको पकड़ के दे दूंगा, मतलब मैं उनको मार दूंगा अगर मेरी जमीन पे वो आते हैं. नतालिया, यू डेयर, हाउ डेयर यू, यू आर सेइंग लाइक दिस. लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट. जब नतालिया बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, वो अपना दिल पकड़ लेता है. आया तो मैरिज के लिए था और वो किस तरह से बात कर रही है. ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन.
Natalia, please don't shout. You can shout yourself. Hoyers, in your own house. But there I must ask you to restrain yourself. अपने घर में चिल्लाओ. होयस का मतलब होता है ऊंची आवाज में बात करना. अपने घर में चिल्लाओ, चीखो, कितनी तेज वो करो. But here I must ask you to restrain yourself. अपने ऊपर कंट्रोल करो, because this is my house. Lomov, if it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Yells, Oxen Meadows are mine. अब वो कहता है कि फॉर दिस, मैं, हाँ, इफ इट वाजंट मैडम, अगर ऐसा नहीं होता ना, क्या, कि तुम इतने ऑफुल, इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो. एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब, एक्सक्रूशिएटिंग पाल्पिटेशन का मतलब मुझे तकलीफ हो रही है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो. पाल्पिटेशन का मतलब होता है एक, जैसे पहले भी उसने ये बात की थी कि उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, वो टेंस हो जाता है. इफ माई होल इनसाइड वाजंट अपसेट, अगर मेरा अंदर से मैं इतना दुखी नहीं होता तो मैं तुमसे बहुत ही अच्छी तरह से बात करता. ये तो तुमने ऐसी बात शुरू की है, मैं अंदर से परेशान हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शाउटिंग. आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, तो मैं तुमसे अलग तरीके से बात करता. लेकिन फिर वो चिल्लाता है, ऑक्सन विडोज आर माइन. नतालिया, आर्स. लोमोव, माइन. नतालिया, आर्स. लोमोव, माइन. एंटर चुबुको. दोनों चिल्ला रहे हैं, वो कह रहा है मेरे, वो कह रही है मेरे. जब चिल्ला रहे हैं तो घर के अंदर चुबुकोव भी हैं, वो उनकी एंट्री हो जाती है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है. Chubukov, what is the matter? What are you shouting for? Why you both of are shouting? Chubukov, what is the matter? Why are you shouting for, Natalia? Papa, please tell this gentleman who own Oxon Meadows, we or he. अब देखो उसके फादर हैं, वो भी उसके साथ ही लगेंगे, वो क्यों पीछे हटेंगे. तो वो कह रही है कि फादर, यू टेल, ये बता दो कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, इसके हैं या हमारे हैं. अब चुबुको है, वो तो क्या कहेगा, टू लोमोव डार्लिंग, द मेडोज आर आर्स. जैसे कि आपने पहले भी नोटिस किया कि चुबुको लोमोव के लिए बहुत ही अच्छे वर्ड यूज कर रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैनर में वो बात कर रहा है. तो अभी वो सेम ही पैटर्न अडॉप्ट करता है और वो कहता है कि डार्लिंग, दे आर आर्स. लोमोव, बट प्लीज स्टीफन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स. हाउ कैन दे बी योर्स, कैसे हो सकते हैं तुम्हारे. डू बी ए रिजनेबल मैन, अकल की बात करो. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free of your grandfather's peasant. जैसे कि ये तीसरी बार बात आई है कि मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने ये आपके ग्रैंडफादर के जो वर्कर्स हैं, पीजेंट हैं, उनको टेम्परेरी दिए थे कि थोड़े दिन के लिए काम यहाँ पे वो कर सकते हैं. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it. 40 years तक the workmen worked here and they got accustomed का मतलब होता है फेमिलियर. वो इस जगह से फेमिलियर हो गए, उनका अपनापन हो गया. जब एक जगह पे हम इतने 40 साल तक काम करते रहे हैं, आगे उनके जो आ रहे हैं बच्चे वगैरह, वो भी काम कर रहे हैं वहां पे, तो वो इतनी जगह एक अकस्टम्ड हो जाती है, फेमिलियर हो जाती है टू इट एज इफ इट वाज देयर ओन, बट इट हैपेंड दैट. तो ऐसा ही हुआ है शायद, तो उस वजह से आपको लगता है कि वो तुम्हारे हैं, अदरवाइज वो नहीं है. चुबुको, excuse me, my precious, you forgot just this, that the peasants did not pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute. वो कहता है कि जो peasants ने तुम्हारी grandmother को इसलिए तो कुछ नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो उन्हीं के थे, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो उन्हीं के थे और उनकी खुद की चीज के लिए हम क्या पैसे दें. And now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. इसका मतलब है कि तुमने तो वो प्लान और डॉक्यूमेंट, वो प्लान जो बनी थी उस टाइम, वो तुम्हें पता ही नहीं है, वो तो हमारे हैं. लोमोव, I will prove to you that they are mine. अब देखो प्रूफ कैसे होगा, I will prove to you that they are mine. चुबुको, you won't prove my darling. तुम्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे हैं. लोमोव, I shall, वो कहता है कि ना, मैं तो प्रूव करूंगा कि ये हमारे हैं. चुबुको, डियर वन, why yell like that, क्यों चिल्ला रहे हो. You won't prove anything just by yelling. चिल्ला के तो कुछ नहीं होता. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. ना तो मैं किसी दूसरे का चाहता हूं और ना ही मेरी ऐसी इंटेंशन है कि अपनी जमीन जायदाद या अपना कुछ भी मैं किसी दूसरे को दूं. Why should I? Why should I? क्यों दूं मैं. And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows
to the peasants than to you there। और इस तरह से तुम बहस करते रहे ना फालतू की, तो मिडोज में तुम्हें देने की बजाय जो आगे peasants है वर्कमैन उनको ही ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। लोमो, I don't understand how have you the right to give away somebody else property। आपको किसने अधिकार दिया कि किसी की प्रॉपर्टी आप किसी को दे दो? You have not the right। चुबुको, you may take it that I know whether I have the right or not। You may take, वो कहते हैं कि तुम इसको जो मर्जी समझो, that I know whether, मुझे पता है कि क्या right है, किसको देना है किसको नहीं। I know everything because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on। मेरी आदत नहीं है तुम्हारी तरह चिल्लाने की, मेरे को सब पता है, मुझे सब पता है कि किसको देना है किसको नहीं देना। I young man am twice your age। मैं तुमसे यंग मैन, मैं तुमसे 2 गुना उम्र का हूं। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट। और मैं कह रहा हूं कि मुझसे इस तरह से एजिटेशन में बात मत करो, तुमसे 2 गुना मैं उम्र में बड़ा हूं। लोमो, नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं और मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यू कॉल माई लैंड योर्स, मेरी जमीन को तुम अपना कह रहे हो। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर कहते भी क्या हो कि मैं शांति से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। स्टीफन स्टेपनोविच। जो अच्छे नेबर होते हैं ना वो ऐसे नहीं करते। यू आर इंट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। ग्रैबर मतलब किसी चीज को हथियाने वाला, किसी दूसरे की चीज को जो जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ ग्रैबर। सो यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। चुबको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, क्या कह रहे हो, ग्रैबर कह रहे हो। नतालिया, पापा सेंड द मोअर्स आउट टू द मिडो एट वंस। एकदम जो हमारे वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, मोअर्स हैं, उनको फटाफट मिडोज में भेज दो, नहीं तो ये अपना अधिकार है वहां पे, उसको ये कर लेगा, अपना अधिकार है वो यहाँ पे जमा लेगा। चुबको, व्हाट डिड यू से सर। Natalia, oxen meadows are ours and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up। ठीक है, shan't कंट्रैक्शन फॉर्म है shall not की, shan't। एक ही बात नतालिया भी और उसके फादर भी। अब इधर 2 हो गए, वो एक रह गया, और जहां पे 2 हो जाते हैं तो वो तीसरे को कैसे बोलने देते हैं, तो वही बात चल रही है। पहले सिर्फ नतालिया थी, लेकिन अभी क्या है, चुबुकोव भी आ गए हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो चुबुकोव हैं वो अपनी डॉटर का ही साथ देंगे, वो उसी के फादर हैं, तो वो दोनों एक तरफ हैं और यही कह रहे हैं कि shan't give them up। Lomo, we'll see, I'll have the matter taken to the court and then I will show you। अब देखो बात बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, कोर्ट तक। So we will see, I have the matter taken to the court। कोर्ट चलते हैं, then I will show you, तब दिखाता हूं तुम्हें। Chubuko, to court, you can take it to court and all that, you can, I know you, you are just on the lookout for a chance to go टू कोर्ट। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ, ठीक है चलो कोर्ट में, यू कैन, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तो मौका ही ढूंढ रहे हो ना। जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, तुम तो इसी तरह से बहुत ही घटिया किस्म के हो। आगे आ रहा है, यू पेटी फोगर। पेटी फोगर मीन होता है, जो कमीना घटिया जो होता है, दैट इज पेटी फोगर। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम्हारा तो खानदान, तुम तो सारे के सारे इसी तरह के हो, घटिया किस्म के हो। तुम जब कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हो तो